Hello students. In this video we are going to discuss about the derivative of those type of function which has, suppose that is the sin x to the power x square plus 3x, or you can say which is of the form fx to the power gx. First of all, for finding those type of functions, the derivative of those type of functions, just we have to recall this type of function 2x plus 3 whole to the power 4. We know about how to find d by dx by using chain rule. Or you can say it is of the form fx to the power n. That means we know how to find derivatives of the type function fx to the power n. Also we know that type of find the d by dx of by using the formula d by dx of ax. This is of the form n to the power fx and it is xn. We know the differentiation of xn also. Now suppose that type of function will be given sin x to the power x square plus 3x. In that type of function, or you can say the function to the power function, here f of x to the power g of x. Now we have to find that type of function, derivative of that type of function. Then what we have to do? Suppose it is y equal to fx to the power gx. So for that purpose, what we have to do, because there is no any direct formula to use here to find y upon dx by using direct formula. For that purpose, what we have to do? We have to use the log y. If we will be used, then it will be the log fx to the power gx, and it can be written as g of x of log of fx. It's the log of fx, f of x, log of f of x. Now by using u into v, we can find the derivative. It's log y 1 by y dy upon dx gx into 1 by differentiation of log of fx, 1 by log of fx, it will be f dash x, and plus log of f of x into g dash x, derivative of x. Y, the value of y will be here, then we can find d upon dx. D upon dx will be y into gx. Here in place of y you have to write the f x to the power gx. Gx 1 by log x f dash x plus log of fx into dash x. By using that formula we can solve. Also there is an alternative formulas. We know e to the power log x to the base c equal to x. By using that also we can solve it. We can write it y equal to here fx to the power gx. In place of that directly we will write y equal to e
to the power log of fx to the power gx. Here it can be multiplied. So that is the by using that formula. Also alternatively we can solve. Now see the use of logarithmic formula. For recall only, I am going to write here. We have to use during the solution of that logarithmic differentiation log of m into n to the base e equal to log of m plus log of n. We have to use that formula. If e has been not written, then it's understood there is the e. Log of m by n, it will be log m minus log n. Log m to the power n, here we have used n log m. Log of m to the base a, the change of base formula, it is log of m to the base c by log of a to the base c. And finally the e, that formula is e log x to the base c equal to x. By using that formula we will be solve the all questions where we have to use log. Now see the questions. तो ये क्वेश्चन 1 है, एक्सरसाइज 5.5 एनसीईआरटी का, y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x. इसमें अगर हम log लेते हैं दोनों तरफ, तो log y इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x. ये यूज करते हैं फॉर्मूला log m इंटू n इंटू p. It will be log m plus log n plus log p. 2 है 3 है, जितना भी रहेगा ये प्लस होते जाएगा m तक. ये log m इंटू log m इंटू n इंटू p. तो सेपरेटली इट कैन बी रिटन एज log cos x plus log cos 2x plus log cos 3x. Of differentiating both sides with respect to x. We know the differentiation of log y is 1 by y. Because we are going to differentiate it with respect to x, then we have to multiply dy upon dx. It has discussed. Now log cos x, so 1 by cos x. It's the function of function. So first of all, log cos x just treated as the u. The log cos x 1 by cos x and d by multiply by d by dx of cos x minus sin x. Log cos 2x, so 1 by cos 2x. We know the differentiation of d by dx of log x equal to 1 by x. That here the log cos 2x 1 by cos 2x, again the differentiation of cos 2x, the minus sin 2x, and differentiation of 2x is 2. Function of function. Similarly, the log cos 3x 1 by cos 3x, the differentiation of cos 3x is minus sin 3x, again differentiation of 3x is 3. So that is the complete differentiation here. We have to find dy upon dx. We can write here dy upon dx equal to y will be multiplied in this side, because we have to find only dy upon dx. Y if will be multiplied, then value of y is here cos x, cos 2x, cos 3x, and it becomes minus tan x, minus 2 tan 2x, minus 3 tan 3x. So that is the answer. And now we are going to see the next question, question number 3. 3 है y इक्वल टू log x to the power cos x. अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट टेकिंग log बोथ साइड्स. तो इट बिकम्स log y, I log of log cos x
के पावर cos x, तो cos x मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको log of log x to the power cos x, तो cos x will be multiplied here, ये जो पावर है वही यूजिंग log m के पावर n log m, ये फार्मूला यूज करके इसको cos x will be here multiply, कहीं कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा, ध्यान से देखें। तो cos x into log of log x, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, करना क्या है, जो भी फंक्शन है ऊपर उस फंक्शन को मल्टीपल फॉर्म में ला कर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्योंकि बात बाकी डिफरेंशिएशन हम जानते हैं। तो log y का 1/y इंटू dy अपॉन dx cos x, और u इंटू v पर cos x को छोड़ेंगे, log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन, log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log 1/log x इंटू log x का 1/x, अब प्लस, अब की बार log ऑफ log x को छोड़ेंगे, cos x का माइनस sin x, we know the y को सिंपली इधर ला देंगे, तो therefore dy upon dx equal to y will be here multiply y, value of y is given log of log x to the power cos x into cos x divided by x log x, अब प्लस माइनस माइनस साइन एक्स, ये माइनस है, माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ x, तो हो गया ये। अब इसी क्वेश्चन को दूसरा जो अल्टरनेटिव मेथड है, ये अल्टरनेटिवली कैसे सॉल्व होगा, तो इस ये उसी क्वेश्चन को हम अल्टरनेटिवली कैसे सॉल्व करेंगे। हियर द क्वेश्चन इज y इक्वल टू log x टू द पावर cos x, अब ये टोटल को हम x अगर मानते हैं, इट कैन बी रिटन एज e टू द पावर log ऑफ log x cos x, फार्मूला यहाँ यूज करेंगे e टू द पावर log x, e इक्वल टू x, तो y इक्वल टू e cos x, इट कैन बी रिटन एज cos x log ऑफ log x, सेम चीज है, उसी चीज को दो बार लिखा गया है। अब हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करने जा रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन, वी नो द डिफरेंशिएशन dy upon dx, अब e टू द पावर cos log ऑफ log x है, तो ये एक बार ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ex ही होता है, तो ex का ex लिख देंगे, ex यानी e cos x log ऑफ log x, अब ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना होगा फंक्शन ऑफ फंक्शन पर ex, और फिर अब इसको इसके रिस्पेक्ट में किए तो ex का ex होगा, फिर cos x इंटू log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये जो किए हैं वही क्या किए हैं भाई, cos x log का करेंगे, log ऑफ log x का तो 1/log x, और log x का फिर करेंगे तो 1/x, यानी cos x को छोड़े log ऑफ log x रखिए इंटू v पर प्लस log ऑफ log x को छोड़ देंगे और cos x का माइनस x होगा, हो गया ये डिफरेंशिएशन dy upon dx। देखिए ये जो लिखे हैं इसी को e टू द पावर log ऑफ log cos x टू द पावर cos x, ये मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि दैट मींस इट कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म, और ये क्या है, ये log x के पावर cos x है, तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं log x के पावर cos x, ये सेम e log x होता है, e log x, तो वहीं यूज करते हुए ये x के बदले ये लिख दिए, अब जो है वो आ गया cos x बाई x log x माइनस sin x log x। इसी क्वेश्चन का ये दो मेथड है, हमेशा हम लोग इसको पहले समझ लें फिर इस तरह से भी समझ लें, तो यूज करने में आसानी होती है, सहूलियत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है
given y equal to x plus 1 by x to the power x plus x to the power 1 plus 1 by x. क्वेश्चन नंबर 6. अब लेट u इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पर प्लस आ गया, द साइन प्लस. अब प्लस में डायरेक्ट यहाँ टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे तो इट विल बी रॉन्ग. क्यों? क्योंकि लॉग m प्लस n का फॉर्मूला नहीं होता है. जनरली यहाँ गलती क्या होती है, स्टूडेंट लिखते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड. तो बीच में हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ये लॉग हमेशा लॉग m इंटू n के लिए होता है. लॉग m प्लस n में ये नहीं होता है लॉग m प्लस n इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n. इट्स रॉन्ग, ये होता ही नहीं है. इसका यहाँ पर सावधानी रखना है. यहाँ लॉग हम टेकिंग लॉग बोथ साइड अलग अलग मानेंगे. तो यहाँ लेट u इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर एक्स को हम u मान लेंगे और v माने इसको v इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स या 2x. तो टेकिंग लॉग बोथ साइड इन इक्वेशन 1, इट बिकम्स लॉग u log of x plus 1 by x or x या h by x. So here that power will be multiplied, that raise multiply here, so log u x log x plus 1 by x by using the formula log m to the power n, n log n. अब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, बस काम यही है. तो 1 by u du upon dx और x ये u इंटू v हो गया, x u और टोटल v. तो x को छोड़े. अब log है log x प्लस 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स. log x 1 बाई एक्स होता है, इंटू कर देना x प्लस 1 बाई एक्स को. तो x प्लस 1 बाई एक्स, x का 1 और 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. अरे ये 1 बाई एक्स है, दैट मीन्स x का पावर कितना है, x का पावर माइनस 1. तो डी बाई डी एक्स ऑफ x के पावर माइनस 1 है, माइनस 1 है इंटू x के पावर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 होता है. वही माइनस 1 ये माइनस 2 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस लॉग x प्लस 1 बाई एक्स. x का 1 ये छूट गया, u इंटू v पर ये आया. अब डी यू अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, u इधर, तो u का वैल्यू x प्लस 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई होगा. अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिए. x है x प्लस 1 बाई एक्स, तो एलसीएम x हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू इसको यहाँ पे एलसीएम ले लेते एक्स स्क्वायर, ये एलसीएम एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये तो जो करते हैं भैया. तो ये वही है, नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखे और ये x यहाँ ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा. ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, अब प्लस लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स. तो ये अभी एक पार्ट हुआ. अब सेकेंड पार्ट क्या है, v इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 x रेज टू 1 प्लस 1 बाई एक्स. तो अगेन वी हैव टू टेक log both side, taking log both side. So it will be log v log x 1 plus 1 by x. Again use that formula, then it can be written as log v equal to 1 plus 1 by x log x. U into v here, we have to use u into v also, log v dv upon dx. 1 plus 1 by x u, छोड़िए इसको, log x 1 by x plus log x को छोड़ेंगे. 1 plus 1 by x can be written as 1 will be 0 and minus 1 by x square, x to the power minus 1. तो ये therefore dv upon dx, v will be here, the value of v is x 1 plus 1 by x. If he will be take the LCM, then it can be written as x plus 1 by x square plus log minus log x
x square. Of dv upon dx here, y equal to u and v, it has been taken and that is y equal to u plus v. So dy upon dx can be written as, therefore dy upon dx will be du upon dx plus dv upon dx. So du upon dx plus dv upon dx. Here if we will write, then answer will be completed. In place of du upon dx we have to write x plus 1 by x to the power x square minus 1 by x square plus 1 plus log x plus 1 by x, and dv upon dx here x 1 plus 1 by x into x plus 1 by x square minus log x by x square. अब अल्टरनेटिवली ये इसका सलूशन हो गया. अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन को जो अल्टरनेटिव मेथड था उस मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं. उस मेथड को सॉल्व करने के लिए फिर वही फॉर्मूला आपको लगाना होगा. अब इसमें क्या है कि y कैन बी रिटेन एज e टू द पावर log x plus 1 by x to the power x plus e to the power log, it's the power of x plus 1 by x log x to the power 1 plus 1 by x. Same thing can be written is in that form. If you will be right here, y equal to differentiating both sides with respect to x, और first of all ये जो power है it can be multiplied here x, that power can be multiplied here, also we can write in that form 1 plus 1 by x into log x. तो यहाँ हम डायरेक्टली लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. अब आप dy अपॉन dx जब लिखेंगे तो ये क्या होगा, e टू द पावर x log x plus 1 by x. अब फिर dy dx ऑफ x log x plus 1, तो dy dx जो आया ये, अब देख रहे हैं कि ये इतना, ये इसका x log x plus 1 by x का ये आया है, तो आप यहाँ लिख दें सीधे. तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x plus 1 by x. अब प्लस इसका करेंगे तो यही e के पावर 1 plus 1 by x log x. अब इसका डिफरेंशिएशन भी हम लोग निकाल चुके हैं. 1 plus 1 by x into log x का ये डिफरेंशिएशन आया है इतना, ये इसको लिख देंगे. तो ये हो जाएगा x plus 1 by x स्क्वायर और माइनस log x by x स्क्वायर. अब ये इसको हटाएंगे तो ये, इसको हटाएंगे तो ऐसे अल्टरनेटिव भी हम यूज करेंगे. और अल्टरनेटिव यूज करेंगे थोड़ा सा ध्यान में आ जाएगा कि इट कैन बी रिटेन एज e x log x plus 1 by x, then it will be also easy. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, y equal to x to the power sin x plus sin x to the power cos x. ध्यान से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेट होने पर वही आप x to the power sin x प्लस जहां आ गया तो अलग अलग मानना होगा. u equal to x to the power sin x and v equal to sin x to the power cos x. लेट कर लिए
ये 1 ले लिए u इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ लिखा जाता है टेकिंग लॉग बोथ साइड। टेकिंग लॉग बोथ साइड लिख लीजिए u इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड। छोड़ना नहीं एक स्टेप भी बिना लिखे। तो लॉग u लॉग एक्स टू द पावर साइन एक्स बस। अब m पावर n ये मल्टीप्लाई n लॉग m होता है। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, अब u इंटू v पर इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर देना है। अब आप u du अपॉन dx साइन x log x का 1/x कैन राइट है प्लस log x छोड़ेंगे साइन x का cos x। तो देयरफॉर डिवाइड du अपॉन dx कैन बी रिटन एज u का वैल्यू है x टू द पावर साइन x, x टू द पावर साइन x साइन x बाई x प्लस log x cos x या cos x log x। ये हो गया du upon dx। सिमिलरली ये v इक्वल टू साइन x टू द पावर cos x है। इसको लिए टेकिंग log बोथ साइड, log v log sin x टू द पावर cos x, log v अब ये cos x यहाँ मल्टीप्लाई हो गया log m टू द पावर n, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ भी डिफरेंशिएट करेंगे तो log v कैन बी रिटन एज 1/v u into v cos x, log sin x कैन बी रिटन एज 1/sin x, sin x का log sin x 1/sin x, अगेन sin x का cos x into v पर हो गया log sin x का, फिर log sin x को छोड़ेंगे प्लस differentiation of cos x is minus sin x, we know 1/v dv upon dx छूट गया 1/v dv upon dx। तो therefore dv upon dx v will be here multiplied v value of v is sin x to the power cos x। We can write here cos x by sin x cot x, cos x cot x, we can write cos x cot x log sin x minus sin x log sin x। ये dv upon dx आ गया। y इक्वल टू यहाँ क्या है u प्लस v, क्योंकि माने हैं इसको u इसको v, y dy upon dx du since y इक्वल टू u प्लस v, तो therefore dy upon dx can be written as du dx plus dv upon dx। अब write here the value of du upon dx and dv upon dx। The du upon dx is that x to the power sin x by x plus cos x log x and plus dv upon dx sin x to the power cos x cot x minus sin x log sin x। तो ये हो गया। फिर अल्टरनेटिव, जैसे मैं बताया सर मैं बता रहा हूँ अल्टरनेटिवली इफ यू वांट टू सॉल्व नॉट बाय टेकिंग सेपरेटली u and v डायरेक्टली, देन व्हाट यू हैव टू राइट y इक्वल टू, ये आंसर हो गया। यहाँ आंसर के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अल्टरनेटिव मेथड पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं सब में। अल्टरनेटिवली अगर चाहें तो कैसे बना सकते हैं y इक्वल टू e टू द पावर log x टू द पावर sin x प्लस log sin x e to the power log sin x power cos x। अब ये मल्टीप्लाई हो जाता है
y equal to we can write e to the power sin x into log x plus e to the power cos x log sin x। अब इसी dy upon dx यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये क्या होगा dy upon dx e sin x। अब जब हम इसको करेंगे e x का e x होता है e x का, तो ये e sin x log x जो है उसको लिखते हैं और फिर sin x log x का हम कर चुके हैं यहाँ डिफरेंशिएशन sin x by x cos log x प्लस cos x log x। ऐसे भी जो किए हैं एक स्टेप में हो जाएगा। अब प्लस फिर इसको छोड़ देंगे e के पावर cos x log of sin x इंटू cos x इंटू log sin x करेंगे। तो जो किए हैं या अपने से करने में क्या दिक्कत है, cos x हो गया, cos x को छोड़ दिए, इसका 1 by sin x इंटू cos x यानी cot x हो जाएगा, cot x cos x इंटू cot x माइनस log sin x को छोड़ेंगे, cos x का sin x होता है तो sin x log sin x। अब इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, इसको भी उस फॉर्म में लिख देंगे तो ये तुरंत आंसर हो जाएगा। तो ये एक उसी का शॉर्टकट मेथड, ये सेपरेटली मानेंगे। तो इस तरह से इसमें हमें दक्ष हो जाना है, इस मेथड में इस पर करने आ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन हम तुरंत सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। नंबर 11 y इक्वल टू x cos x टू द पावर x प्लस x sin x टू द पावर 1 by x। अब हमें डिफरेंशिएट करना है तो अलग अलग इसको u और इसको v मानेंगे। तो u इक्वल टू x cos x टू द पावर x जैसे करते आए टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब ये टेकिंग लॉग बोथ साइड है तो log u log x cos x टू द पावर x log u ये पावर है, पावर मल्टीप्लाई है x इंटू log x cos x डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करना यानी कि log u 1 by u du upon dx x log x cos x का, तो x cos x क्या हो गया 1 by x cos x log x 1 by x cos x। फिर अब x cos x को डिफरेंशिएट करना है तो x cos x होगा, अब ये यहाँ u इंटू भी लग जाएगा x cos x का माइनस sin x प्लस cos x x का 1 कंप्लीट हो गया। प्लस अब ये x को छोड़े थे इसका किया, अब x का करेंगे तो 1 और log x cos x छोड़ देंगे तो ये हमारा du upon dx कंप्लीट हो जाएगा। du upon dx इक्वल टू u इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो u का वैल्यू x cos x के पावर x। अब इट कैन बी रिटन एज ये x सब में है x ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें x और ये x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस sin x बाई cos x tan x प्लस cos x और प्लस log x cos x। ये हो गया du upon dx। अब 1 by dv upon dx ये छूट गया है तो फिर इसको करेंगे ये u ये भी प्रोडक्ट रूल यहाँ भी लगाएंगे तो 1 by x। अब डिफरेंशिएशन ऑफ log x sin x तो log x का पहले फंक्शन ऑफ फंक्शन यहाँ भी तो 1 by x sin x x sin x से करेंगे u इंटू भी x sin x के cos x प्लस sin x x का 1 हो गया। अब 1 by x को छोड़े थे इसको लेते हैं 1 by x को करेंगे तो माइनस 1 by x स्क्वायर और log x sin x छूटेगा। तो देयरफॉर ये
dv अपॉन dx लिखना है, dv अपॉन dx इक्वल टू v इधर आ जाएगा, v का वैल्यू x sin x पावर 1/x। अब जो है लिख देना है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 1/x sin x, 1/x sin x तो दोनों में होगा। यहाँ भी ये गड़बड़ हुआ है ना, ये x 1/cos x तो दोनों में है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर cos x 1 हो जाएगा, cos x डिवाइडेड बाई cos x, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, दोनों में है। तो x ये sin x बाई cos x माइनस tan x प्लस ये x इस x से कैंसिल हो गया है, क्योंकि यह x तो सब में है, ये x छूटा log 1/x cos x है, तो ये x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर तुरंत ऐसे ब्रैकेट में देकर के x इंटू ही दे दिया जाए, x इंटू x। अब dv अपॉन dx है, x sin x 1/x, अब ये x sin x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर x कैंसिल होगा, यहाँ 1/x है, तो ये क्या हो गया 1/x, ये सब में है, यह जो 1/x है यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है। तो ये x sin x इन दोनों में 1/x रहने देते हैं, 1/x sin x करेंगे तो ये x कटेगा, cos x cot x हो जाएगा, फिर ये sin x कटेगा, 1/x रहेगा, और ये 1/x को बाहर आ गया, माइनस 1/x x स्क्वायर log x sin x। तो ये dv अपॉन dx, ये dv अपॉन dx। अब यहाँ y इक्वल टू, सिंस y इक्वल टू u प्लस v है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। अब du अपॉन dx का वैल्यू वहाँ से dv अपॉन dx का वैल्यू दोनों लिख देंगे, आंसर आ जाएगा, यानी कि x cos x पावर x माइनस x tan x प्लस 1 माइनस x tan x प्लस 1 प्लस x log x cos x, अब प्लस x sin x 1/x बाई x, x sin x अलग से x है, cot x प्लस 1/x माइनस 1/x स्क्वायर लॉग, यहाँ नीचे माइनस log x sin x बाई एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये ड्यू अपॉन एक्स आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, अरे ये क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसमें x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू 1, और यू कैन से द x रेज टू y प्लस y रेज टू x इक्वल टू। अब दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज नोन एज अगेन द इम्प्लिसिट फंक्शन, ये एक साथ चल रहा है। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट वही जो अल्टरनेटिव मेथड लगाना है वही लगाएंगे, नहीं तो इसको यू लो फिर इसको भी लो फिर लिखो, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू यू फॉर यू। तो यहाँ आप सीधे e log x टू द पावर y लिए, e log y टू द पावर x, ये बताया जा चुका है। e log x इक्वल टू x होता है, या
बेस सी अंडरस्टूड है, ई लॉग एक्स एक्स वही यूज किया गया, ई लॉग एक्स टू द पावर वाई प्लस ई लॉग वाई टू द पावर एक्स इक्वल टू 1। अब ये y मल्टीप्लाई हो गया, ई वाई लॉग एक्स प्लस ई एक्स लॉग वाई इक्वल टू 1। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ई एक्स का ई एक्स यानी कि ई वाई लॉग एक्स, फिर वाई लॉग एक्स को यू इंटू भी पर किए तो वाई लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स छोड़े वाई का डिवाइड बाई एक्स प्लस ई एक्स लॉग एक्स यानी कि ई एक्स, तो ई एक्स जो करते हैं, अब एक्स लॉग वाई को डिफरेंशिएट कर देना है सिंपली, तो एक्स वाई प्लस डिवाइड बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई यू इंटू भी पर एक्स लॉग वाई का 1/y, अब फिर चूंकि x के रेस्पेक्ट में तो इंटू डिवाइड बाई dx, x को किए 1 log y इक्वल टू 0। अब सीधे डिवाइड बाई dx मल्टीप्लाई कर लिए, डिवाइड बाई dx कॉमन कर लिए, तो डिवाइड बाई dx कॉमन करेंगे, ये देखिए ई वाई log x का जो वैल्यू होगा x टू द पावर y को ही लिए, तो ये x y लिख दिए, और इसमें भी और x y को इसमें भी अलग अलग, फिर ई log y यानी कि y टू द पावर x है, तो यही y टू द पावर x इसमें मल्टीप्लाई किए, फिर y टू द पावर x इसमें भी, अब इसमें डिवाइड बाई dx कॉमन ले लिया गया सिंपली, तो डिवाइड बाई dx जब कॉमन लिए तो क्या बचा है, x टू द पावर y log x प्लस यहाँ से y टू द पावर x x/y। अब बिना डिवाइड बाई dx वाले को घटा देना होता है, यानी दोनों तरफ, तो ये इधर आ जाएगा घटाने पर, इधर जब घटाएंगे तो दोनों जीरो हो जाता है, तो माइनस वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई प्लस एक्स टू द पावर वाई लॉग वाई, ये जो प्लस है इधर माइनस हो जाता है क्योंकि माइनस किया जाता है दोनों तरफ। अब यहाँ वाई एलसीएम ले लिए, इसमें एक्स ले लिए, तो वाई एलसीएम ले तो सिंपली इसमें वाई से मल्टीप्लाई होगा, इसमें एक्स लिए तो एक्स इसमें मल्टीप्लाई होगा। अब डिवाइड बाई एक्स यानी कि इसको इधर डिवाइड कर देना होता है, इसको इधर भी इधर, तो डिवाइड करेंगे तो ये y/x और ये नीचे डिवाइड करेंगे, तो यही डिवाइड बाई dx का वैल्यू हो गया। तो यही एनसीईआरटी का ये जो एक्सरसाइज 5.5 है, हर तरह का क्वेश्चन इसमें बता दिया गया। अब आगे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल का क्वेश्चन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। थैंक्स।